Hello students, how are you? Welcome to Tour Academy. I hope you are all well. And now you have got your date sheet also. बोर्ड से डेट शीट भी आ गई है आपकी and आपका साइंस का पेपर है 4 मार्च को. तो keeping that thing in your mind, you should start preparing for your examination. तो अब हम आपको एक सीरीज में पब्लिश करूंगी जिसमें I will explain some important questions इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वो क्वेश्चंस आपके सेलेक्ट किए हैं. इसमें आपके जो सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर भेजा है उसमें उसके भी क्वेश्चंस हैं, प्लस आई हैव गॉट सम अदर सैम्पल पेपर्स आल्सो. सो वो सारे जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर हो सकेगा ये आपके जो 1.5 मंथ रह गया है उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी. सो प्लीज़ यू कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब उसको करो. सीरीज में आपको मैं सारे क्वेश्चन आंसर इसके एक्सप्लेन करके बताऊंगी. राइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है दिस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, और ये सीबीएसई का आपका जो 2023 का सैम्पल पेपर बोर्ड ने सीबीएसई ने जो हमें भेजा है on the basis of that question paper. ये कुछ questions हैं और उसमें first question है on the basis of this diagram. Right? Diagram में क्या है? We have taken one test tube और उस test tube में with the help of this dropper we are adding concentrated H2SO4 in this test tube, and this test tube में we have taken sodium chloride solution. Right? So this is the sodium chloride solution taken in this test tube, और ये है हमारा dropper. With the help of dropper, drop by drop we will add concentrated sulfuric acid in this test tube. So आपको बताना है कि रिजल्ट क्या है. दूसरे टेस्ट ट्यूब में सेम we have added our concentrated H2SO4, सेम टेस्ट ट्यूब है ये, जिसमें आपने इसमें NaCl भी आ गया और आपने ड्रॉपर से concentrated H2SO4 भी आपने ऐड कर दिया. This is concentrated sulfuric acid. So you will have to tell कि ये जो moist litmus paper है, this is a moist means wet litmus paper है, because without water the test will not be given by the litmus paper. If you take dry litmus paper कोई टेस्ट उसमें कोई चेंज कलर में नहीं होगा. सो यू विल हैव टू टेक मॉइस्ट दिस लिटमस पेपर, और हमें नहीं पता ये ब्लू लिटमस है कि रेड लिटमस है, व्हाट टाइप ऑफ लिटमस इज दिस, पर आपको सिर्फ इसमें डायग्राम में लेबल किया है मॉइस्ट लिटमस पेपर. राइट, तो आपने ये मॉइस्ट लिटमस पेपर डिलीवरी ट्यूब में से कोई भी जो फ्यूम्स निकल रहे हैं, गैस निकल रही है, उसके पास आप इसको लेके आए हो. राइट, तो on the basis of this diagram, the question is the change in color of litmus paper is due to. ये litmus paper में जो change आएगा कलर का, वो क्या change आएगा? ऑप्शन है presence of acid नंबर 1, यानी कि A है presence of acid है ये इसमें, because of the presence of acid litmus paper में change आएगा उसमें कलर में. B is presence of base, if it is a base in the formation of base in the test tube. C is presence of hydrogen ion in aqueous solution, presence of hydrogen ion है, या number D is presence of litmus which acts as indicator. So these are the 4 options given here. तो आपने you will have to select the correct option. First of all, before you decide कि what is the answer, you should know what is happening is this test tube. आपने तुक्के नहीं मारने हैं, आपने पहले डिसाइड करना है. you should know the reason behind it कि इसमें what is happening in this test tube. आपने लिया है NaCl, right? आपने NaCl लिया है और उसमें आपने H2SO4 ऐड किया है. आपने क्या ऐड किया है? H2SO4, concentrated sulfuric acid we have added in aqueous solution of sodium chloride. तो इसका जो रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, वो रिएक्शन होगा, एक तो इसमें बनेगा Na2SO4. Na2SO4 it is a salt. तो सॉल्ट तो बना है इसमें
वो तो it will neither it is acidic nor it is basic, so it will not change the color of your litmus paper. और साथ में यहाँ पे एक बना है 2HCl. Hydrochloric acid is also formed during this reaction which is taking place in this test tube, right? तो अब आपने डिसाइड करना है कि लिटमस पेपर का कलर कौन सा होगा, क्यों होगा, by choosing one of the options. तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो प्रेजेंस ऑफ एसिड तो चलो है इसमें क्योंकि HCl बना है, ठीक है. पर आपने क्या करना है, बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें से आपको शुरू में ही लिखा हुआ होता है जब MCQs हैं कि यू विल हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड कंप्लीट, जो कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करेगा, वो आपने आंसर चूज करना है. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेजेंस ऑफ एसिड. ठीक है, एसिड इसमें बना है, पर लेट अस सी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस. नंबर 2 है प्रेजेंस ऑफ बेस. वो तो बिल्कुल रॉन्ग है, वो तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इन द रिएक्शन जो मैंने केमिकल इक्वेशन ये लिखी है, बेस तो कोई बन ही नहीं रहा है, देयर इज नो बेस फॉर्मेशन. एंड नंबर 3 है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. प्लस का मतलब हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयन हैज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मुझे इसमें ठीक लग रहा है, क्योंकि डी है प्रेजेंस ऑफ लिटमस विच एक्ट्स एज इंडिकेटर. अब जो लिटमस पेपर है, मॉइस्ट लिटमस पेपर, इट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड. It can be used to detect the presence of base also, so it is an indicator. पर यहाँ पे इसका कोई appropriate meaning नहीं निकल रहा है कि D का like कि presence of litmus which acts as indicator. ठीक है, indicator तो ये है, लेकिन यहाँ पे base नहीं बन रहा है, acid बन रहा है, तो कुछ इसका कोई खास ऐसा appropriate इसका meaning नहीं निकल रहा है कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है. तो अब आपको इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, दिस इज द श्योर टेस्ट, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. एसिड तो इसमें बना, लेकिन एसिड क्यों बना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. सो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. हालांकि ये भी ठीक है कि प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो प्रेजेंस ऑफ एसिड पे अगर आप टिक मार्क करते हो तो उससे भी बेटर आंसर ये है आपका कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एन एसिड इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयन के बगैर देयर इज नो एसिड. कोई भी आप एसिड ले लो, वेदर इट इज HCl, वेदर इट इज H2SO4, HNO3, इवन ऑर्गेनिक एसिड्स भी अगर आप लेते हो CH3, COOH, एसिटिक एसिड, दे आर हैविंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. सो दिस इज द श्योर इंडिकेशन दैट एसिड इज फॉर्म्ड. तो दिस C is the most appropriate. हालांकि A भी करेक्ट है, लेकिन आपने टिक मार्क किस पे करना है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो बना ही बना है HCl में. HCl जो आपका बना है, दिस इज HCl. HCl में हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन. तो दिस इज द this shows hydrogen ion shows the presence of an acid. So this is the most appropriate answer out of these 4 options. तो आपने C के ऊपर टिक मार्क करना है. So this is the first question, CBSE sample paper आपका जो 2023 का है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इन द रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री में आपने पढ़े हैं, फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री के पढ़े हैं आपने रेडॉक्स रिएक्शन, और उसमें मीनिंग है रेडॉक्स रिएक्शन का, you must have done reduction, oxidation and reduction reaction. कि chemical reactions में whenever a chemical reaction take place, some of the reactants they get oxidized and some of the reactants they get reduced. reactant में एक का reduction होता है और एक का oxidation होता है. And these types of reactions are known as redox reactions. So what is the definition of redox reaction? A chemical reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously. मतलब side by side. एक reactant का oxidation हो रहा है तो दूसरे reactant का reduction हो रहा है, right? So these types of, and most of the chemical reactions are redox reaction, because ज़्यादातर normally in chemical reactions में
one substance gets oxidized and another substance gets reduced. So this is the meaning of redox reaction. तो आपको इसका मीनिंग पता लग गया. Now they have given an equation, that is MnO2 manganese dioxide reacts with 4HCl, that is dilute hydrochloric acid, to form MnCl2 manganese dichloride या manganese chloride plus water plus chlorine gas is also produced. तो इसमें आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. यू विल हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन, क्योंकि ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे. इसमें रिएक्टेंट में से वन आउट ऑफ दीज 2 रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, वन रिएक्टेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. तो आपको डेफिनेशन के बेस पे वो सेलेक्ट करना है, और अनदर रिएक्टेंट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वो आपने देखना है. तो दे हैव गिवन द 4 ऑप्शन. लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन. क्योंकि NCERT में आपको जो क्लियर कट डेफिनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बताई है, वो बताई है ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. बाकी और भी हैं डेफिनेशंस, लाइक ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, लाइक व्हेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम द एनी एटम देन इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इट मीन्स दे आर गेटिंग रिड्यूस्ड. वी हैव अनदर एग्जांपल, एडिशन ऑफ मेटल is known as reduction, and addition of non-metal in a reactant is also known as oxidation. So we have some other concepts also oxidation reduction के, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपके NCERT में सिर्फ addition of oxygen and removal of hydrogen के बेस पे oxidation reduction को explain किया है, so we will use those concept only. तो आपका ये equation है, आपने बताना है इनमें से चूज करके कि which option is the most appropriate option which is describing this reaction. तो first option है manganese dioxide यानी कि MnO2 is reduced to MnCl2, manganese dichloride, and HCl is oxidized to H2O. ठीक है, ये तो ठीक है, manganese dioxide is reduced to MnCl2, क्योंकि manganese dioxide में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, वो निकल गए और वो बन गया MnCl2. नो ऑक्सीजन इज देयर आफ्टर द रिएक्शन. सो आधा तो इसका बिल्कुल करेक्ट है कि यस ऑफ कोर्स मैग्नीज डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड बिकॉज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस इन मैग्नीज डाइऑक्साइड आफ्टर द रिएक्शन. आफ्टर द रिएक्शन ऑक्सीजन इसमें रिमूव हो गया, देयर इज नो ऑक्सीजन, सो मैग्नीज डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. आगे लेकिन आपसे पूछा है, दे दिया है टू मेक MnCl2 एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O. HCl ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसमें जो आपका HCl है वो ऑक्सीडाइज कैसे हुआ? ऑक्सीडाइज होने के लिए तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन तो बॉटल में तो रिमूव नहीं हुआ, ऑलरेडी हाइड्रोजन इज देयर, तो इसलिए ये आपका रॉन्ग है. HCl में से हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है देन इट विल बी नोन एज कि HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन यहाँ पे HCl में से हाइड्रोजन रिमूव नहीं हुआ है, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एज सच इन 2H2O, इट मींस ये आपका यहाँ से रॉन्ग हो गया. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन बी क्या है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू MnCl2. इट इज ओके, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड में से बिकॉज ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, सो दैट इज व्हाई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. तो इट इज करेक्ट, मैग्नीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू MnCl2 एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2. HCl किसमें बदल गया? Cl2 में. इसका मतलब कि HCl में से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गई एंड इट रिमेन्स Cl2. हाइड्रोजन इसका गायब हो गया, रिमूव हो गया, जहां मर्जी गया उसका हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर the point is that hydrogen is removed from HCl
ऑक्सीजन, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसका पॉइंट कि HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, तो ये इसका भी करेक्ट है। बट स्टूडेंट्स यू शुड नो कि जो करेक्ट है वो तो आपने सेलेक्ट कर लिया, कि बाकी के जो नॉट करेक्ट, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका यही क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा। हो सकता है इससे मिलता जुलता देयर मस्ट बी सम अदर क्वेश्चन, तो यू शुड नो द बैकग्राउंड कि जो आपने सेलेक्ट किया है वो क्यों सेलेक्ट किया है, व्हाई इट इज करेक्ट एंड व्हाई रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। आपको ये भी पता लगाना है, क्योंकि आपने तुक्के नहीं मारना है, आपने you should know exact the reason, you should know the exact reason that this is correct, तो बाकी के wrong क्यों है। तो इसका तो मैंने बता दिया आपको कि wrong क्यों है, क्योंकि यहाँ पे HCl is not getting oxidized। C में आपको पता है MnO2 is oxidized, ये तो यहीं से गलत हो गया। MnO2 कहाँ ऑक्सीडाइज हुआ, उसकी तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो वो तो रिड्यूस हुआ, तो इट इज रॉन्ग, यहीं से ये तो रॉन्ग हो गया, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। D है MnO2 is oxidized, this is wrong, and MnCl2 and HCl is reduced to H2O, ये भी wrong है, and this is also wrong। इसमें MnO2 is oxidized is wrong, आधा करेक्ट है कि HCl is reduced into Cl2, इतना तो करेक्ट है, बट ये फर्स्ट पार्ट इसका wrong है। So this A is wrong, C is wrong, D is wrong, A is the most appropriate and the करेक्ट ऑप्शन, बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो दिस इज द आंसर। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस आई हैव एक्सप्लेन्ड, और नेक्स्ट मेरे वीडियो में आई एम मेकिंग सम शॉर्ट वीडियोस, ताकि जल्दी जल्दी आपके सैम्पल पेपर्स के सारे क्वेश्चन आंसर मैं एक्सप्लेन कर दूँ। सो ये दो क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना एंड मेक अ क्वेश्चन बैंक। अब टाइम आपके पास बच्चों बहुत थोड़ा है, और 1.5 महीने में आपने मैक्सिमम जितने आप टाइम है आपका क्वेश्चन आंसर्स का, हमने सारे चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन तो करके बता दिए, डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मैंने, और लेकिन अब आपका टाइम है कि डिटेल में तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अब क्वेश्चन आंसर भी अपने साथ के साथ करने हैं। सो अपनी नोटबुक में ये सारे क्वेश्चन आंसर आपने ऐड करते जाना है, और यू मेक योर ओन क्वेश्चन बैंक, जिसमें जितने भी सैम्पल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी वो आप नोट करते जाना। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, और डू अपना सारी प्रिपरेशन अच्छी तरह से आपने करनी है, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही थोड़ा टाइम है, एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम आपने ये सारे मेरे वीडियोस देख के और अपना एक क्वेश्चन बैंक बनाते जाना है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।